Welcome class 11. Today we are going to discuss about the advances. Students, advances is the another types of the primary functions of the bank. In there we have to see they have the different kinds of the advances: overdraft, cash credit, cash loan, and discounting bills of action. Students, what is the advances? Advances is the also the one kind of the credit facility which is provided by the bank to its customer, but advances is not a loan because it is provided by the company to its customer for the short term period. Okay, means bank provide the loan to its customer for the longer period, but here the bank provide these kinds of facility to its customer for the shorter period. That is the advances. मीन्स लॉन्गर पीरियड के लिए बैंक क्या करती है, लोन प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को. बट जब बैंक किसी शॉर्ट पीरियड के लिए अपने कस्टमर्स को सम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, सो दैट फैसिलिटी इज नोन एज द एडवांसेस. नाउ हियर आल्सो द bank charge the high rate of interest on the given credit facility, that is the advances. So the rate of interest is also charged on the advances. It is different from the loan because loan for the longer period and advances for the shorter period. Now let's see what are the different kinds of the advances here. Okay, first is the overdraft. A company having current account with bank is allowed overdraft facility. The borrower can withdraw fund as and when needed. Okay, here जिस कंपनी का करंट अकाउंट जिस पर्टिकुलर बैंक में रहेगा, तो पर्टिकुलर बैंक उस करंट अकाउंट होल्डर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी. दैट इज़ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओके, हियर द बोरोवर, यहाँ पे जो बोरोवर है मीन्स जो करंट अकाउंट होल्डर है, ही कैन विथड्रॉ द फंड एज एंड व्हेन नीडेड. उसको जब फंड की जरूरत पड़ेगी तब वो क्या कर सकता है, उसको फंड को विथड्रॉ कर सकता है. एंड ही कैन also withdraw the fund over the limit. मतलब उनके अकाउंट के जो अकाउंट है, उनका जो करंट अकाउंट है, उसमें जो भी बैलेंस रहेंगे उससे ऊपर की अमाउंट भी निकाल सकते हैं. ओके, बट द इंटरेस्ट चार्ज विल बी चार्ज देयर. ओके, he is allowed to overdraw on his current account, means he can allow to withdraw the overdraw from his current account अप टू द क्रेडिट लिमिट. जो भी क्रेडिट लिमिट रहेगी, जो भी पर्टिकुलर डेट लिमिट रहेगी, उसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, उसके विद इन क्या कर सकते हैं, वो अपना फंड को ओवरड्रॉ कर सकते हैं. मीन्स जितनी उनकी ज़रूरत, जितना उनको चाहिए, अगर उतना बैलेंस उनके अकाउंट में नहीं है, फिर भी वो क्या कर सकते हैं, ओवरड्रॉ कर सकते हैं, बट अप टू द क्रेडिट लिमिट विच इज़ सैंक्शन बाय दी बैंक. बैंक ने जो भी क्रेडिट लिमिट सैंक्शन किया होगा उसके अंदर. ओके, ना विद इन दिस स्टिपुलेटेड लिमिट एनी नंबर ऑफ ड्राइंग आर परमिटेड. जो भी उनका स्टिपुलेटेड लिमिट होगा, जो भी बैंक ने लिमिट सैंक्शन किया होगा, उसके अंदर ड्रॉवर और बोरोवर कैन विथड्रॉ द एनी अमाउंट. ओके, विद इन द स्टिपुलेटेड लिमिट. Now repayment can be made whenever required during the time period, and repayment they have to make the repayment within the given टाइम पीरियड. जो भी टाइम पीरियड दिया होगा बैंक के थ्रू, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा उनको, वो अमाउंट को अगेन रीपेमेंट करना पड़ेगा. बट द इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द ओवरड्रॉ अमाउंट. सो द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन. जितना भी उन्होंने एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ किया होगा पूरा, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. Okay, so this is the first types of the advances and the first credit facility which is given by the bank. Second is the cash credit. तो हमने देख लिया पहला फंक्शन कि बैंक कैसे क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है by the overdraft. Second is the cash credit. Yes, it is the also very important and popular form of financial aid which is provided by the bank. Now this form of credit is operated in same manner as overdraft facility. Yes, this is the also one kind of the overdraft facility because it also provide facility to the customer in the same manner as a overdraft facility. So the borrower can withdraw amount from his cash credit account up to a stipulated limit based on security margin. Okay, security margin के तौर पे जो भी उनकी stipulated limit होगी, whatever the credit limit the bank has sanctioned,
उसके उसके विदिन ही ड्रॉवर क्या कर सकता है, ड्रॉवर कैन विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट. ओके. Now, the cash credit is given against the pledge or hypothecation of goods or by providing alternative security. Okay, here the कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट द प्लेज, मतलब कोई भी गुड्स हो गया, कमोडिटी या प्रॉपर्टी हो गई, ओके, उसको प्लेज करके या फिर हाइपोथेकेट करके कोई भी गुड्स को या फिर जो भी सिक्योरिटीज होंगी लाइक शेयर डिबेंचर कुछ भी, उसको हाइपोथेकेट करके या फिर प्लेज करके या फिर उसको मॉर्गेज करके उसके ऊपर कैश क्रेडिट लिया जा सकता है. ओके, मीन्स एक तरह का हम लोग बोला ना, कुछ गिरवी रख के कोई भी प्रोडक्ट या फिर कुछ सामान, कोई भी गुड्स, प्रॉपर्टी, कुछ भी असेट्स, उसको गिरवी रख के उसको मॉर्गेज करके या फिर हाइपोथेकेट करके हम क्या कर सकते हैं, कैश क्रेडिट ले सकते हैं फ्रॉम द बैंक. ओके. नाउ बट हियर विल बी इंटरेस्ट चार्ज. यहाँ भी क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा. सो द इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोरोड एंड नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन. यहाँ पे भी क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी, जो अमाउंट बाकी होगी देने को, रीपेमेंट करने को, उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. बट दे हैज़ नॉट ऑन द क्रेडिट लिमिट सैंक्शन. ओके, जो क्रेडिट लिमिट रहेगी उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा. बट हाँ, क्रेडिट लिमिट होगी, उसके लिमिट के अंदर ही वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, ले सकते हैं, बट उस लिमिट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. ना पॉइंट नंबर 3, कैश लोन. यस, this is the total amount of loan which is credited by the bank to the borrower account and interest is also payable on the actual balance outstanding. ओके, यहाँ पे भी कैश लोन दिया जाएगा. सो हियर द टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज क्रेडिटेड बाय द बैंक. पूरा अमाउंट कौन क्रेडिट करेगा, बैंक क्रेडिट करेगी किसको, बोरोवर्स को, और उसके ऊपर क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा. नाउ फोर्थ इज द डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. यस, दिस इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. हियर द ड्रॉवल ऑफ द बिल्स मीन्स सेलर, जो सेलर होगा ही कैन रिसीव मनी फ्रॉम द ड्रॉवी, और ड्रॉवी से मनी रिसीव कर सकता है. मीन ड्रॉवी कौन होगा यहाँ पे, ही इज़ द बायर, एंड ऑन द ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट, या तो ड्यू डेट को या फिर ड्यू डेट के बाद. ओके, बट इफ द ड्रावर कैन रिसीव मनी बिफोर द ड्यू डेट. लेकिन अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ड्रावर यहाँ पे क्या कर सकता है, जो उसका मनी है, जो उसने गुड्स को सेल किया है, सो यहाँ पे जो उसने गुड्स सेल किए उसके लिए उसने उसको 3 मंथ का सपोज बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिल गया है. ओके, मीन्स यहाँ पे बायर आफ्टर द 3 मंथ ही विल पे द मनी ऑफ द गुड्स जो उसने परचेज किया है. सो हियर द ड्रावर, इफ द ड्रावर वांट दैट मनी बिफोर द ड्यू डेट, सो ही कैन आल्सो रिसीव द मनी बिफोर द ड्यू डेट बाय डिस्काउंटिंग द बिल्स विद द बैंक. वहाँ पर वो अपने बिल को ले जाके, जो बायर है वो बिल्स ले जाके बैंक में सबमिट कर सकता है, बैंक में दिखा सकता है, और यहाँ पे बैंक क्या करेगी, उसको फंड प्रोवाइड करेगी. बट दिस इज़ नथिंग बट द सेलिंग द बिल्स टू द बैंक. यहाँ पर मीन्स अगर बायर जाके वो बिल्स, जो भी बिल्स प्रोवाइड किया गया सेलर के थ्रू, उस बिल को जाके बैंक में देगा, और उसके थ्रू, उसके अगेंस्ट में उसको क्या मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, जो उसका अमाउंट बाकी है सेलर के बायर की तरफ से. सो हियर द सेलर कैन सेल द बिल्स ऑफ एक्शन to the bank and the bank give money to the drawer but less than the face value of the bill. बिल की जो भी वैल्यू होगी उससे कम देगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक. सो द बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर द ट्रेड बिल्स, दे आर एक्सेप्टेड बाय द बैंक एंड कैश इज एडवांस अगेंस्ट देम. ओके, नाउ हियर द ड्रावर इज द सेलर and the drawer is the buyer. So students, today we will see the 1, 2, 3, 4. There has the 4 types of the advances. First is the overdraft, second is the cash credit, third one is the cash loan, and fourth one is the discounting bills of action. Now in the next video we will meet with the new topic. आज के लिए इतना है. Goodbye, take care.